Good morning, students. Hope you are good and well. Today we are starting a new topic, which is communication of chapter 6, directing. I am Mayank Singh, teacher, your teacher from MB Patel School. Okay. So today we will discuss about communication. What is communication? So communication means the thoughts or the information which one person passes to another person is known as communication. Okay, communication is a process of exchanging words, letters, instructions, thoughts, opinions, etc. Okay, communication is the process of exchanging of words, letters, instruction or opinions. We can exchange the thoughts, we can exchange the information, we can exchange our words, we can exchange our ideas from each and every person. That is known as communication. So as communication is the process by which we can pass our information, our ideas, our opinions from each other, it is. So what are the characteristics of communication? First characteristic is goal oriented process. Second is clear words and language. Third is two-way process. Fourth is continuous process. Fifth is many equipments. Sixth, many types of methods. Motivating activity, 7th point. Eighth is relation with administrative process. Ninth is human process. Okay, so these are the 9 points which are to be included in the characteristics of the motivation. Okay, so we will discuss the characteristics in detail. First, goal oriented process. Okay, so communication is not only the exchange of information but it is also aim at the achievement of objective. ठीक है, सिर्फ communication सिर्फ exchange of information ही नहीं है, but by communication we can achieve our objectives in organization. If the workers, if the employees, if the top level management, they are communicating with each other, so they are communicating for their goals, for their derived goals, for their achievements, for the organization. ठीक है, जो भी उनको रिसीव करना है, जो भी उनको पाना है, जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, उसके लिए वो कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं. सो दैट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. Second is clear words and language. In communication process, the language, the words must be clear, must be understood, okay, by each other. जो सेंटर है, जो रिसीवर है, दोनों को आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए. उन्होंने क्या बोला, ठीक है, एक दूसरे को समझ में आना चाहिए. ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड शुड बी देयर. ठीक है, उन दोनों को वो वर्ड समझ में आना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन वो पास कर रहे हैं. ठीक है, so the words and the language used in communication should be clear. Okay, third point is two-way process. Two-way process, why? The communication process only take place when there are two persons. ठीक है, किसी एक बंदे से communication नहीं होता है. ठीक है, आपस में बोल रहा है तो लोग क्या बोलेंगे, पागल है. Okay, but the two persons which they are talking, when they are talking to each other, they are expressing some views, they are expressing their ideas, they are expressing their information with each other. Okay, they are exchanging their information, so that is known as communication. So it is a two-way or bilateral process. Then fourth point is continuous process. Okay, so continuous process means communication process starts from the beginning of the business and remains at the end of the business. Communication process बिजनेस के स्टार्टिंग से और बिजनेस के अंत तक साथ में रहेगा. जब तक बिजनेस है तब तक कम्युनिकेशन प्रोसेस रहेगा. वाई? अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो कैसे होगा? कम्युनिकेशन का मतलब यही नहीं कि सिर्फ हम बात कर रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं. ओके, कम्युनिकेशन मस्ट बी देयर फॉर देयर वर्किंग्स. अब किसी को कोई फाइल पास ऑन करनी है, किसी को कोई वर्क करना है, किसी को अकाउंटिंग करना है, किसी को प्रोडक्शन में काम है, किसी को मार्केटिंग में काम है, किसी को फिनेंस में काम है, दैट शुड बी डन
विद कम्युनिकेशन प्रोसेस, कैन नॉट बी डन विदाउट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगर वो कम्युनिकेशन से नहीं हो पाएगा तो फिर वो वर्क कैसा, ठीक है। तो इसलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्क, इसलिए इसको बोला है कि इट विल स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड्स up to the end of the business. Fifth point is many equipments are used for the communication process, ठीक है। एक तो हमारा नेचुरली इक्विपमेंट है विच इज़ आवर माउथ, हमारी जो वॉइस है, जो भगवान ने हमें गिफ्ट दिया, हमारी आवाज़, ठीक है। एक तो हम उसी से बात कर रहे हैं, हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं, ठीक है। बट अदर इक्विपमेंट्स आर ऑल्सो देयर विच आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल, SMS, एक्सेट्रा, ठीक है। these are the equipments also and these are the helpful media by which we can exchange our thoughts, we can exchange our information, we can exchange our messages, okay. Sixth point is many types of methods. There are many types of methods by which we can communicate, by which the communication process can be done. So it can be internal communication, it can be external communication, written communication, oral communication और sign languages, ठीक है, जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल पे हम बोल रहे हैं, हम कोई रिटर्न में दे रहे हैं या फिर हम ओरली बोल रहे हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल हम जिसमें कोई बोल नहीं रहे हैं, हम कुछ रिटर्न में, हम उसमें क्या साइन है, कोई बोर्ड हम दिखा रहे हैं, कोई मैप हम दिखा रहे हैं, कोई डायरेक्शन हमने दिखाया, ठीक है। तो हम एक्शंस के थ्रू उसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज सेवेंथ पॉइंट इज मोटिवेटिंग एक्टिविटी। ड्यू टू कम्युनिकेशन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉब इंक्रीजेज इन एम्प्लॉयज। अब ये कैसे है, ठीक है। तो मोटिवेशन से जॉब का जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे इंक्रीज होगा, वाई, because the employees, the workers, they are communicating with each other regarding their work, regarding their direction, regarding their guidance towards the organizational goals. एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर रहे हैं वर्क के लिए, उनको जो गाइडेंस मिल रहा है, उनको जो डायरेक्शन मिल रहा है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से, उनके मैनेजर्स से, उनके डिपार्टमेंटल हेड से मिल रहा है, सुपरवाइजर से मिल रहा है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन। अगर वो कम्युनिकेशन नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। सो for motivating the employees, the direction, the guidance is to be provided and that is also known as communication, okay. Eighth point is relation with administrative process. Administrative process means the admin process where the official work is going on. So communication mainly relates to the administration of the unit. Why communication? Because जो लाइक अब जो हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो रिटर्न फॉर्म में है, लेटर्स हैं, नोटिस हैं, ठीक है, मेमोज हैं, और कोई ऑफिशियल कोई सर्कुलर है, दैट इज़ टू बी पास्ड और विच इज़ टू बी सर्कुलेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। उसको भी हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन इज़ यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक राइट डिसीजंस एंड फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है कि हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करना है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करना है, और एडमिनिस्ट्रेशन को हमने सही तरीके से चलाने के लिए कम्युनिकेशन इज मस्ट। नाउ नाइन्थ पॉइंट, ह्यूमन प्रोसेस। वाई ह्यूमन प्रोसेस, ठीक है। कम्युनिकेट कौन कर रहे हैं, ह्यूमन कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कर रहा है, एम्प्लॉयज़ कर रहा है, सुपरवाइजर्स कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल, सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं फॉर देयर वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। सो कम्युनिकेशन इज ए ह्यूमन प्रोसेस। वट एवर आर द मीडियम्स ऑफ द कम्युनिकेशन, बट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन स्किल्स कम्युनिकेशन डज नॉट टेक प्लेस। अगर ह्यूमन स्किल्स नहीं होंगे, ह्यूमंस नहीं होंगे, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, ओके, किससे कम्युनिकेशन होगा। सो moreover at the time of communication there are feelings, anger also, there is a fear also, so matters also affect the communication. ये सारे factors जो हैं ये communication पे effect करते हैं। so it is also known as human process. Next we will discuss about the formal communication. What is formal communication? Okay, so formal communication are the communication which is done in a written manner or in a oral manner, ठीक है, जिसका कोई प्रूव हो कि ये कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है। सो सच कम्युनिकेशन इज जनरली इन राइटिंग, ठीक है, रिटर्न उसमें होगा। सो
notice or memo is given as warning to the employees who are irregular and remaining absent without prior permission. ये एक एग्जाम्पल है फॉर्मल कम्युनिकेशन का. अगर कोई एम्प्लॉय रेगुलर एब्सेंट हो रहा है या रेगुलरली ही इज़ नॉट कमिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वर्क, सो द नोटिस और द मेमो अगेंस्ट हिज without permission leave is to be given to the employees, that why you are not coming to the organization, why you are not present in the organization. Okay, so that is in the written form. तो इसका क्या है, नोटिस या मेमो क्या बता रहा है कि it is a formal communication. Okay, and also communication is formally linked between the superior and subordinate. ये कम्युनिकेशन क्या सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में होता है. एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये फॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए. फॉर्मल मीन्स टूवर्ड्स द वर्क. ठीक है, ये कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ वर्क के अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेशन हो रहा है. जो काम जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसी के लिए कम्युनिकेट हो रहा है, बाकी की फालतू बातें इसमें नहीं हो रही. ओके, सो there are the characteristics of formal communication. So first one is, in this communication system superior and subordinates are formally related. इस communication में क्या है, superior भी हैं, subordinates भी हैं, and they are formally related to each other for the working process. इस communication में दोनों की ज़रूरत है. Second is, its clear objective is कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. थर्ड इज फॉर्मल कम्युनिकेशन इज जनरली इन रिटर्न फॉर्म. फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या जनरली किस में होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द डेफिनेशन ऑफ ऑन द मीनिंग ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. ओके, फोर्थ इज, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज एक्सेप्टेड एज पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर. अगर कोई भी जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड है, कोई भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अगर अपनी पॉलिसीज़, अपने रूल्स, अपने जो उनके स्ट्रेटजीज़ हैं, अगर वो डिस्कस नहीं करेंगे, अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे अपने सबॉर्डिनेट्स को, सुपीरियर्स को, देन द मैसेज कैन नॉट बी सर्कुलेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अगर वो सर्कुलेटेड नहीं होगा तो किसी को भी वो इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगी. तो सो कम्युनिकेशन सिस्टम इज मस्ट. फिफ्थ इज, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब ये कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है. स्ट्रक्चर मीन्स कैसा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, वेदर इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इट इज़ एन ऑफिस, ठीक है, कोई फैक्ट्री है. ठीक है, अब जहाँ पे जैसा इन्वायरमेंट होगा, जहाँ पे जैसा वर्किंग प्रोसेस का इन्वायरमेंट होगा, द कम्युनिकेशन शुड बी देयर एज द वर्किंग इन्वायरमेंट. जैसा वर्किंग इन्वायरमेंट होगा वैसा कम्युनिकेशन होगा. अब लेबर्स से अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो लेबर्स से क्या कम्युनिकेट करेंगे, फॉर देयर वर्किंग, कि क्या काम कर रहे हैं वो, क्या कौन सी मशीनरी में क्या काम है, कितना प्रोडक्शन हुआ है. ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का एक लैंग्वेज हो जाएगा. ठीक है, अब हम हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं तो उनसे हम बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में, एडमिन के बारे में, ऑफिशियल लेटर्स हैं, सर्कुलर्स हैं, पॉलिसीज़ हैं. ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे. सो द कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सिक्स्थ इज, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे फॉर्म होता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के अकॉम्प्लिशमेंट के अकॉर्डिंग, कि हमें अपने बिजनेस में क्या गेन करना है, हमारा क्या एम है. डेट इज़ टू बी फर्स्टली टेकन एज फॉर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारा है तो हम ये सब ऑब्जेक्टिव्स को पहले देखेंगे. सेवेंथ इज, इट इज़ ईजी एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ईजी टू अंडरस्टैंड. वाई, बिकॉज इन दिस द लैंग्वेज इज अंडरस्टैंडेबल. ओके, रिटर्न में है, अगर हम ओरली भी बोल रहे हैं तो वेल प्रिपेयर्ड सेंटेंस आर टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी डिलीवर्ड टू द रिसीवर. ओके, सो दिस communication is easy and clear to be understood. Okay, now we will discuss about informal communication.
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन विच इज़ नॉट इन रिटर्न, ठीक है, इनफॉर्मल वे में है। इसमें बेसिकली दिस कम्युनिकेशन इज डिपेंड ऑन द ह्यूमन रिलेशन। ये कम्युनिकेशन किसके ऊपर डिपेंड है? ह्यूमन रिलेशन के ऊपर एंड फ्रेंडशिप अमंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक साइड पे हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा है, जिसमें ओनली वर्क इज टेकन एज अ प्रायर, ओके, सो प्रायोरिटी हमारी किस में ले रहे हैं हम? वर्क को। बट इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन द ह्यूमन रिलेशन और द ह्यूमन एक्टिविटी और द ह्यूमन बिहेवियर वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। इसको हम मेनली किस में ले रहे हैं? ह्यूमन रिलेशन को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। किसमें? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। So no need of control and order can be explained orally or in a symbolic language। ठीक है, तो कोई भी हमारा कंट्रोल्ड वे वे या ऑर्डर हमारा कोई भी सिंबॉलिक लैंग्वेज से हमारा नहीं हो रहा है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ओके, सो we'll discuss the characteristics of informal communication। okay, so first is it depends on the human relation। informal communication किसके ऊपर डिपेंड होता है? ह्यूमन रिलेशन के बीच में। अगर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ का रिलेशन अच्छा है, अगर मैनेजर अच्छा है तो वो एम्प्लॉयज़ से भी अच्छे से बात करेगा। इफ एम्प्लॉयज़ दे आर वर्किंग वेरी प्रॉपर एफिशिएंटली देन मैनेजर विल ऑल्सो अप्रिशिएट देम। ओके, so it depends upon the human relation। Second is control or order is not required। In this type of communication the order or the control over the process is not required। Third is can be explained orally or थ्रू सिम्बॉलिक लैंग्वेज। ठीक है, ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये हमारा सिम्बॉलिक लैंग्वेज में, जैसे कोई साइन लैंग्वेज है, हमने कोई डायरेक्शन प्रोवाइड किया, कोई मैप हम दिखा रहे हैं, कोई हम कुछ हम ऐसा कोई शेप या कुछ ऐसा मीन्स स्ट्रक्चर हम या स्क्रप्चर्स या जेस्चर्स या पोस्चर्स हम कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जिसकी वजह से हम कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट इन इनफॉर्मल वे। ओके, फोर्थ इज डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एंड फ्रेंडली रिलेशन। ठीक है, ये ह्यूमन और फ्रेंडली रिलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। फिफ्थ इज इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड ईजी। ठीक है, ईजी और फ्लेक्सिबल, अंडरस्टूडेबल है। सिक्स्थ इज प्रोसेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस कम्युनिकेशन। कोई प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपने किसी सबॉर्डिनेट को अपने सुपीरियर से बात करना है तो फॉर्मल वे में जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी तीसरे पर्सन के थ्रू जा रहा है। उसको अगर डायरेक्ट अप्रोच करना है या फिर अगर उससे कुछ बात करना है तो वो अपॉइंटमेंट लेके फिर वो डायरेक्टली उनसे मिल सकता है, या फिर कोई भी वर्किंग प्रोसेस के लिए जो भी बात करनी है वो होगा इन अ रिटर्न मैनर और इन अ फॉर्मल कम्युनिकेटिव मैनर। ओके, बट इन फॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। Seventh point is it gives more coordination and credibility to organization। Coordination why? Because if the human relation are developed then coordination will take place accordingly। okay, वैसे ही कम्युनिकेशन हमारा प्रोसेस जब इनफॉर्मल वे में होगा तो कोऑर्डिनेशन अपना आप होगा, कोऑपरेशन अपना आप होगा। अगर ह्यूमन रिलेशन डेवलप हो रहा है तो आपस में एम्प्लॉयज़ अच्छे से रहेंगे, हार्मोनियस इन्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, सो द कोऑर्डिनेशन विल बी डेवलप्ड accordingly। okay, eighth point is informal communication is not supplementary but complementary to the formal communication। जो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो क्या है? सप्लीमेंट्री बट नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसका सपोर्टिव है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन का सपोर्टिव है, ये नहीं कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री कुछ उसमें एक्स्ट्रा कुछ हमें मिल रहा है, बट इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज़ नॉट सप्लीमेंट्री। मतलब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के जगह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम नहीं ले सकते, या फिर हम अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं कह सकते कि फॉर्मल लें या फिर इनफॉर्मल लें। ठीक है, होगा तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वी कैन टेक एज कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर हमने हमारा वर्क हो गया, कंप्लीट हो गया, तो हम इनफॉर्मल वे में भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम मैनेजर से सिर्फ और सिर्फ वर्क की बात कर रहे हैं। जिस समय हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, जिस समय हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है वो ओवर हो गया, तो हम इनफॉर्मल वे में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी कैन कम्युनिकेट विद द सुपरवाइजर्स, विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन इनफॉर्मल वे ऑल्सो अप टू अ लिमिट। ओके, so in this we have discussed
the informal communication, formal communication, and the communication. Okay, in our next class we will discuss about next topic. Thank you for watching this video. Hope you have understood the topic.